مرثیہ پر ایک گفتگو کے ساتھ علی عدنان آپ کے سامنے حاضر ہے۔ مرثیے کا لفظ عربی لفظ رثا سے نکلا ہے، جس کا مطلب کسی کی وفات کے بعد اس کا ذکر خیر کرنا ہے۔ ہماری شاعری، ہمارے دین اور ہمارے ثقافت کے اندر مرثیے کو ایک ایسی نظم کہا جاتا ہے جس میں کوئی المناک واقعہ، کوئی سانحہ، کسی کی وفات یا کوئی بہت دکھ بھری داستان یاد کی جائے۔ مرثیے کا مقصد صرف دکھ منانا نہیں ہے، بلکہ یاد کرنا ہے ایک دکھی واقعے، ایک سانحے کو، اور اس سے سبق لینا ہے ایمانداری کا، اپنے اصول پر کاربند رہنے کا، سچائی کا، بہادری کا، شجاعت کا، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر ڈٹے رہنا، کھڑے رہنے کا یاد کرنے کا موقع ہے یہ۔ مرثیے کی محفل میں ایک المناک واقعے کی یاد ہمیں بہت سبق دیتی ہے، اور یاد کرنے کا قرآن میں بھی سورہ زاریات میں اللہ خود کہتا ہے، اور ذکر کرتے رہو کہ ذکر کرنا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ فائدہ جس کا اللہ نے قرآن میں سورہ زاریات میں وعدہ کیا، ایک محفل عزاداری میں مرثیے کے ذریعے پورا ہوتا ہے۔ مرثیہ مجلس میں پڑھا جاتا ہے، مجلس اعزاء میں، جہاں حسین کا، ان کے رشتہ داروں کا، ان کے دوستوں، ان کے ساتھیوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا اس کا ذکر ہوتا ہے، اور جو سبق انہوں نے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے لیے چھوڑے، ان اسباق کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ اکیلے میں کرنے کی بات نہیں، یہ مل کر منانے کی بات ہے، اور مرثیے میں دو چیزیں الگ الگ شامل ہیں۔ ایک طرف دکھ منایا جاتا ہے اس ظلم کا، اس بہیمانہ ظلم کا، اس پیاس کا، اس دھوکے کا، اس زیادتی کا، اس ظلم کا جو اس دن کربلا میں ڈھایا گیا۔ لیکن ساتھ ساتھ خوشی منائی جاتی ہے کہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری آنے والی نسلوں کے لیے، ہر دین، ہر قوم کی نسلوں کے لیے ایک پیغام چھوڑ گئے کہ بہادری یوں کی جاتی ہے، ایمانداری یوں کی جاتی ہے، ایمان یوں قائم رکھا جاتا ہے، کسی کے ساتھ سمجھوتا غلط بات پر نہیں کیا جاتا، اپنے اصول پر انسان کیسے قائم رہتا ہے۔ تو مرثیہ میں دکھ بھی ہے اور خوشی بھی ہے۔ مسلمان کیا ہے؟ مسلمان اور کافر میں ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ مسلمان اس زندگی کو حقیر جانتا ہے اور موت کے بعد جو زندگی ہے اس کا فکر کرتا ہے۔ کافر اس زندگی کا فکر کرتا ہے، موت کے بعد اس کو کوئی فکر نہیں۔ کربلا میں کیا ہوا؟ حسین، ان کے ساتھی شہید تو ہو گئے، لیکن وہ تو چھوٹی دنیا تھی، دنیاوی زندگی تھی، اس کی ان کو پرواہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے جنت میں اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک بہترین زندگی گارنٹی کر لی۔ اور یزید کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے لیے پکا ہو گیا کہ وہ بچ تو گیا لیکن مرے گا تو صحیح، اور مرنے کے بعد ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ اور مرثیے کی یہی ایک پیاری خوبی ہے کہ اس میں دکھ اور خوشی ساتھ ساتھ ہیں، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو ابدی زندگی کی قدر کرتا ہے، اور کافر وہ ہے جو اس دنیاوی زندگی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کی ایک بہت مشہور غزل ہے جس کا ایک شعر مسلمان ساری دنیا میں پڑھتے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس غزل میں صرف یہی خوبصورت شعر نہیں، آئیے آپ کو ایک اور شعر بتاؤں جو پورا فلسفہ بیان کرتا ہے جو مرثیے میں بتایا جاتا ہے، اور شعر وہ یہ ہے: دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ سانحہ کربلا میں ہماری ابتدا ہوئی مسلمانوں کی، یزید اور اس کے ساتھیوں کی انتہا ہوئی۔ ان کی انتہا
सारी ज़िंदगी दोज़ख में जलना। हमारी इब्तिदा मुसलमानों के लिए एक मशअल राह बन गई, वो कुर्बानी जो उस दिन हुसैन और हुसैन के साथियों ने दी। अब मैंने ज़िक्र किया मजलिस आज़ा का, तो आपके सामने एक तस्वीर पेश करता हूँ लखनऊ की एक मजलिस आज़ा की, ताकि देखिए कि इस मजलिस में मरसिया कैसे पढ़ा जाता था। अब अगर आप इस तस्वीर को देखिए तो आप इसके दाएं जानिब देखेंगे कि काफ़ी सारे अलम पड़े हैं। अलम एक 5 से 15 फुट लंबा एक बांस का अलम होता है और उसके ऊपर मेटल की धात की एक पतरी लगी होती है, जो अक्सर लेकिन हमेशा नहीं पंजा होता है, जिसे हम प्रोटेक्टिव पाम कहते हैं, जिसमें मोहम्मद, अली, हसन, हुसैन, फातिमा मिलकर हमारी हिफाजत करते हैं। अलम के साथ कुछ ऐसे ब्रोकेड, कुछ ऐसे कपड़े भी लटके होते हैं जिन पर रिसाई कलाम लिखा जाता है। कई बार उसके साथ उस मश्क का एक रेप्लिका भी लगाया जाता है जो हज़रत अब्बास भरने गए थे। ये अब्बास का अलम है जो महफ़िल अज़ा में हमेशा सजाया जाता है। फिर पुराने दौर में बुर्राक भी ये वो परिंदा है जिस पर सवारी कर कर हजूर मेराज पर गए थे। शक्ल इंसान की, जिस्म घोड़े का, दुम मोर की, पर फरिश्तों के और सवारी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसको भी वहाँ खड़ा किया जाता। फिर साथ जुलजना का भी मुजस्समा खड़ा किया जाता। फिर एक ताज़िया देखिए इस तस्वीर में। ताज़िया क्या है? इमाम हुसैन के रोज़े की लकड़ी या कागज़ से बनी हुई एक छोटी सी रेप्लिका। फिर आप देखिए कि मिंबर पर थोड़ा सा ऊंचे मरसिया खां बैठा है, उसकी बाईं जानिब सामीन बैठे हैं जो मरसिया सुनने आए हैं, और उसकी दाईं जानिब वो लोग बैठे हैं जो प्रोफेशनल नौहा खां हैं, जो प्रोफेशनल बैन करने वाले हैं। फिर आप एक मशलची भी देखेंगे जो एक मशल उठाकर सिर्फ मरसिया खां के चेहरे पर रोशनी डालता है। और ये एक तस्वीर है कि इस तरह पुराने ज़माने में मजलिस आज़ा होती थी, और अब भी घरों में इसमें से काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं। अब मरसिए की तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितनी अरबी शायरी की है, और अरबी शायरी इस्लाम से भी ज़्यादा पुरानी है। अरब बात भी काफ़िए में करते थे और उन लोगों को शायरी की बेहद कदर थी। अब मरसिया 4 किस्म का होता है। पहला मरसिया वो मरसिया है जिसे रस्मी मरसिया कहा जाता है, जहाँ पर किसी बड़ी हस्ती की वफ़ात पर दुख मनाया जाता है। इसकी मिसाल इलामा इकबाल के मरसिया अश्क खून की है, जो उन्होंने क्वीन विक्टोरिया की वफ़ात पर लिखा। फिर जॉन एलिया ने हकीम मोहम्मद सईद की वफ़ात पर भी एक रस्मी मरसिया लिखा। दूसरी किस्म शख्सी मरसिए की है, जो आप किसी ऐसे शख्स की मौत पर लिखते हैं जो आपके बहुत करीब हो। इस तरह का मरसिया असदुल्ला खां गालिब ने लिखा जब उनके भांजे, जिन्होंने उनको अपना बेटा भी बनाया था, ज़ैनुल आबिदीन आरिफ फौत हुए, और अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा जब गालिब का विसाल हुआ। तीसरी किस्म मरसिए की कौमी मरसिया है, जिसमें किसी कौमी सान्हे का ज़िक्र किया जाता है, किसी मुल्क को बांटा जाए, किसी मुल्क के हिस्से पर कब्ज़ा किया जाए। फैज़ की गज़ल, हम के ठहरे अजनबी कितनी मुलाकातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मदारातों के बाद, भी एक कौमी मरसिया है जो मशरक़ी पाकिस्तान के अलग होने के वक्त लिखा गया। सबसे अहम मरसिया मज़हबी मरसिया है, जो किसी मज़हबी शख्स की वफ़ात के बारे में लिखा जाए। ये मरसिया वो मरसिया है जो बीबी फ़ातिमा ने हज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर लिखा, जो हज़रत अली ने बीबी फ़ातिमा की वफ़ात पर लिखा। और अब ये वो मरसिया है जिसमें करबला के सान्हे को याद किया जाता है। इसको करबलाई मरसिया कहना भी दुरुस्त होगा, बल्कि अब जब भी कहीं मरसिए की बात होती है और मरसिए के साथ क्वालिफ़ायर यानी कि शख्सी या कौमी या रस्मी नहीं लगाया जाता, तो बात करबलाई मरसिया। अब आइए ज़िक्र करें पहले करबलाई
मरसियों की। सानिया करबला के बाद हजूर के ख़ानदान के जो लोग बच गए उनको यजीद ने दमिश्क में कैद किया। कुछ अरसा बाद जब रिहाई हुई तो उन्होंने मदीने का रुख किया, और जब मदीने के करीब पहुँचे तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक शख्स जिसका नाम बशीर बिन जज़लम था उससे पूछा कि क्या तुम्हें शायरी आती है। और पूछा इसलिए कि बशीर बिन जज़लम के वालिद बहुत बड़े शायर थे। उसने कहा जी आती है। तो कहते हैं हमारे से पहले मदीने जाओ और वहाँ जाकर लोगों को बताओ कि हमारे साथ क्या हुआ। तो उन्होंने जो नज़म वहाँ जाकर पढ़ी वो दुनिया का पहला करबलाई मरसिया बनी। उसके बाद बीबी ज़ैनब सुगरा यानी कि बीबी ज़ैनब कुबरा की छोटी बहन, जिन्हें हम उम्मे कुलसूम बिनते अली भी कहते हैं, उन्होंने भी एक मरसिया पढ़ा जो दुनिया का दूसरा करबलाई मरसिया बना। तो बशीर बिन जज़लम और उम्मे कुलसूम बिनते अली ने दुनिया के पहले 2 करबलाई मरसिए लिखे। इसके बाद अरबी में हमाम बिन गालिब अल-फरज़दक ने, फ़ारसी में शेख शादी शिराज़ी ने और उर्दू में शेख शुजाउद्दीन नूरी ने बहुत से मरसिए लिखे, और यूँ मरसिए की रवायत पूरी दुनिया में शुरू हुई। जो इलाका आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान है उसमें सबसे पहले मरसिया 15वीं सदी में लिखा गया दक्कन में। उसके बाद जनूबी हिंदुस्तान में 16वीं सदी में मरसिया लिखा और पढ़ा जाने लगा। उसके बाद शुमाली हिंदुस्तान में 18वीं सदी की इब्तदा अवाइल में मरसिया लिखा और पढ़ा जाने लगा, और 18वीं सदी के वस्त और आखिर के वक्त ये मरसिया लखनऊ आया, जहाँ इसकी बेहद तरक्की हुई और बेहद रवाज हुआ। और आज हम जो मरसिया सुनते पढ़ते हैं वो लखनऊ का मरसिया है। मरसिए के 10 हिस्से हैं, और ये हिस्से मीर मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़मीर ने इस्टेब्लिश किए थे, जो कि मीर दबीर के उस्ताद भी थे। पहला हिस्सा चेहरा है। इस हिस्से में अल्लाह से दुआ की जाती है, अल्लाह की तारीफ़ की जाती है, हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है, उनकी आल की तारीफ़ की जाती है, और बताया जाता है कि आगे क्या होने वाला है। चेहरे के बाद सरापा आता है। सरापे में हम इमाम हुसैन की शक्ल, उनकी बहादुरी, उनकी वजाहत का ज़िक्र करते हैं। सरापे के बाद रुखसत आती है कि कब सब लोग अपने इमाम, अपने अमीर से इजाज़त लेकर अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को मिलकर करबला की तरफ रवाना हुए। आमद उस मैदान में आने का नाम है। तो चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद। इसके बाद एक अरबी रवायत है जिसे रजस कहा जाता है, जहाँ आकर जंग करने वाला बहादुर सिपाही अपने आबाओ अजदाद की तारीफ़ करता है। उसके बाद माजरा आता है, जिसमें वो किस्सा बताया जाता है जो पहले हुआ, जिसकी वजह से आज जंग हुई। माजरे के बाद रज़्म या जंग आता है, जिसमें करबला की जंग बयान की जाती है, और फिर शहादत आती है। शहादत के बाद बैन आता है, जहाँ दुख किया जाता है उस बहीमाना जुल्म और सितम का जो उस दिन वहाँ पर ढाया गया। और उसके बाद अल्लाह से दुआ की जाती है कि आज हम सब को माफ़ करे उन शहीदों के सदक़े जिन्होंने अल्लाह की खातिर अपनी जान, अपना सब कुछ लुटा दिया। मरसिया में 2 किस्म के जज्बात बयान किए जाते हैं, एक मुबकी और एक गैर मुबकी। मुबकी जज्बात दुख, अफसोस के जज्बात हैं, जबकि गैर मुबकी खुशी के जज्बात हैं। और ये ज़िक्र मैंने पहले भी किया था कि मरसिए में दुख भी है और खुशी भी है, और मुबकी और गैर मुबकी अज्जा मरसिए की इस खूबी को आगे करते हैं। अब लखनऊ में 4 बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने मरसिए को तरक्की दी और उसको यूँ राइज किया कि वो हमारी सकाफ़त का, हमारे दीन का, हमारी मौसीकी का, हमारी शायरी का, हमारी मजालिस का एक ऐसा हिस्सा बन गया जो कभी ख़त्म नहीं होगा।
इन 4 लोगों के नाम हैं मीर मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़मीर, जिन्होंने मरसिये के 10 हिस्से वज़ा किए थे, उनके शागिर्द मिर्ज़ा सलामत अली दब्बीर, फिर मीर मुस्तहसन खलीक और उनके बेटे मीर बब्बर अली अनीस। इन 4 लोगों ने मरसिये को जो शक्ल दी, उसको जो मकबूलियत दी, उसकी वजह से इनका नाम हमेशा मरसिये के साथ जुड़ा रहेगा। और जो भी मरसिया कहेगा, इनके मरसिये का असर उसके मरसिये में हमेशा नज़र आएगा। अपने मरसिये के बारे में खुद ज़मीर क्या कहते हैं? जिस साल लिखे वस्फ़ ये हम शक्ल नबी के, सन 1249 थे हिजरी नबवी के, आगे तो ये अंदाज़ सुने थे ना किसी के, अब सब ये मुक़ल्लिद हुए इस तर्ज़ नवी के। 10 मैं कहूँ 100 में कहूँ ये विर्द है मेरा, जो जो कहे इस तर्ज़ में शागिर्द है मेरा। और बेशक जो मरसिया कहेगा वो शागिर्द ज़मीर का होगा। हमने लखनऊ के 4 बड़े मरसिया निगारों का ज़िक्र किया, लेकिन ये ज़्यादती होगी कि हम लाला छन्नू लाल का ज़िक्र ना करें। ये थे तो हिंदू, कुछ रवायतों के मुताबिक बाद में मुसलमान भी हुए, लेकिन थे ये आशिक़ हुसैन। इनको हम मिर्ज़ा दिलगीर तरब लखनवी के नाम से याद करते हैं। इन्होंने शुरू में रुमानवी गज़लियात कहीं, रस्मी शायरी की, लेकिन जब हुसैन का इश्क पाया तो निशात बाग के साथ वाली मोती झील में अपना सारा कलाम डुबो दिया। और उसके बाद पै दर पै मरसिये लिखे, हत्ता कि इनके मरसियों के 7 वॉल्यूम छपे और आज तक जाने जाते हैं। एक बड़ा मशहूर मरसिया है, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, भैया तुम्हें घर जाके कहाँ पाएगी ज़ैनब। ये भी लाला छन्नू लाल का लिखा हुआ मरसिया है। जिस मरसिये को लखनऊ में मकबूलियत हासिल हुई उसको हम क्लासिकी मरसिया कहते हैं। और इस मरसिये में मुबकी अज्जा पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और गैर मुबकी पर नहीं। इसके 2 बड़े लिखने वाले मीर बब्बर अली अनीस और मिर्ज़ा सलामत दब्बीर हैं। बाद में जो मरसिया मकबूल हुआ उसे हम जदीद मरसिया कहते हैं, और इसमें मुबकी की बजाय गैर मुबकी अज्जा पर तवज्जो दी जाती है, और इसमें तवज्जो दी जाती है उस सबक पर जो हम सानिया करबला से सीख सकते हैं। इसका मकसद होता है हमारे अंदर जोश, वलवला, हिम्मत और बहादुरी पैदा करना, ताकि हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और हुसैन और उनके साथियों की बहादुरी और शुजाअत को अपने सामने एक नमूना रख कर ख़ुद भी बहादुरी और शुजाअत दिखाएं। जिस तरह क्लासिकी मरसिये के 2 बड़े नाम दब्बीर और अनीस थे, उसी तरह जदीद मरसिये के भी 2 बड़े नाम हैं, जोश मली आबादी और जमील मजहरी। जोश मली आबादी ने जो मरसिये लिखे वो सिर्फ मजालिस के लिए नहीं थे। उनके मरसियों ने बरे सग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों में, हिंदुओं में और दूसरे लोगों में वो बहादुरी पैदा की, वो वलवला पैदा किया, वो जोश पैदा किया कि वो अंग्रेज़ों से लड़ मरने को तैयार हो गए और उन्हें इस मुल्क, इस खित्ते से बाहर निकाल दिया। आज हम पाकिस्तान में आज़ाद बैठे हैं, लेकिन इस आज़ादी का सेहरा भी हुसैन और हुसैन के साथियों को जाता है कि उनकी बहादुरी को अपने सामने रख कर हम बहादुर हुए, उनकी शुजाअत को सामने रख कर हम शुजा हुए, और उनके नक्श कदम पर चलकर हमने अपने आप को अंग्रेज़ों से आज़ाद किया।